So, hello everyone. Welcome to the series of Naripreneur. Welcome to the another inspiring episode of Naripreneur. Today, we are honored to have with us an incredible entrepreneur and wellness expert. She is the founder of WinYog. She is a fitness and face yoga trainer, helping people transform their physical and mental well-being through her innovative approach. Her journey into the world of wellness is not inspiring, but also relatable for so many of us, where those who are juggling multiple roles. Through Vinyog, she empowers individuals, especially women, to take charge of their health in a simplistic yet effective ways. Her unique method of integrating face yoga into daily routines has gained widespread recognition for its holistic benefits. So, in today's episode, we will dive into her story, her passion for wellness, and her vision for creating lasting impact through her fitness journey and face yoga. So, get ready with me and inspired by her journey and take away some powerful tips to start to incorporating wellness into our life. So, please join me. Welcome Manaswini Shekhawat, the founder of Vinyog Yoga. Welcome, ma'am. Welcome to my series of Naripreneur. Thank you, Shweta. Thank you so much. It was a wonderful introduction. I'm overwhelmed. It is, मेरे को लगता है मैं हूँ मतलब अच्छा लगा. Thank you. मैम, मैं दिल से बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपसे आपसे बातचीत करके। एंड द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि मुझे आपकी बहुत अच्छी चीज लगती है। मैंने आपका एक पेज पढ़ा था जिसमें आपने लिखा था एज ग्रेसफुली एंड ग्लो ब्यूटिफुली। दैट रियली इंस्पायर्ड मी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, मैम। Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. So, ma'am, let's start our today's session. So, ma'am, my first inspiring question is for you. How did your journey into that fitness and face yoga begin? And what inspired you to create that Win Yoga? And is there any personal moment that you realize कि this is the importance in our day-to-day life? So, मैम, इसके बारे में आप बताइए कि ये जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई है और ये किस तरीके से आपने आगे अप्रोच किया है? श्वेता ये जर्नी तो शायद बहुत पहले बचपन में ही स्टार्ट हो गई थी because my mother has induces these qualities in me that you have to keep yourself fit always. So in the beginning, in my childhood, I learned yogasan from my mother only. And in the school also, whenever there was any camp from Vivekanand Kendra or any other institute, so my mother pushed me go and attend them. So I attended all the courses, jo chote mote. I'm talking about 1990, Okay. long time back. Yes. In college also, I got some opportunity to connect with very trained specialist trainer, I can say. By God grace, my body was fit. चलता गया फिटनेस में ठीक था. आई वाज अ स्विमर आल्सो. और घर में बिकॉज वी हैव फार्म तो हॉर्स राइडिंग भी है. तो ये सब भी चलता था साथ में. तो आई वाज परफेक्टली फाइन. वन डे आई वाज डूइंग हॉर्स राइडिंग इन माय फार्म ओनली. So I had a bad fall. So my back got injured, hairline fracture tha, but it took me around 2 months to heal up. Complete bed pain, rest was there. But after that, doctor said you will not bend and you will not go for this yogasan, and forward bending is not allowed when you have a back injury. वो भी lower back में L3 L4 के पास में. So I was very disheartened because that time my yoga practice was good. I was मतलब forward bending, back bending, headstand, chakrasan ये सब मेरा करती थी मैं. It was college time, 1996, I believe. 97 Okay. की बात होगी. Hmm. Uh, फिर फिर when I improved on that my health,
देन अगेन आई स्टार्टेड, क्योंकि रहा नहीं गया, बॉडी रही नहीं कि मतलब बॉडी को था, बॉडी अपने आप ही बोलती है जस्ट पुश मी, पुश मी। एग्जैक्टली। हाँ। तो आई पुश्ड थोड़ा थोड़ा करके, बट आई वाज वेरी स्ट्रेट, ऐसा हो गया था, बैक पूरा आर्च ही रहता था, स्ट्रेट था। और डॉक्टर, बिकॉज दिमाग में डॉक्टर है, बिकॉज डॉक्टर ने बोल दिया, तो यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट थिंग। यस। तो हाँ। मैंने फॉरवर्ड बेंडिंग करती थी, लेकिन बहुत डर डर के करती थी। ठीक है, चलता गया चलता गया, फिर शादी शुदी हो गई, थोड़ा बहुत आप करते हो, रनिंग वनिंग में मैं थी, तो बिकॉज ऑफ फिटनेस ठीक है, बॉडी चलती रही अच्छे से, आगे पीछे चलता रहा। एंड सब कुछ ठीक था, सब कुछ चल रहा है, डिलीवरीज भी हो गई, बच्चे भी नॉर्मल हुए, क्योंकि थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन हाँ, लेकिन जैसा मैं पहले पुश करती थी वैसा मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, फिर मैं अपने को अपने आस सराउंडिंग्स में देखती थी, हाँ कोई मेरी फ्रेंड भी योगा ट्रेनर है, वो योगा क्लासेस देती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, गुड यार, योगा को यार पुशिंग द योगा लोगों की उसके लिए। बस मैं अपना प्रैक्टिस करती थी, लेकिन ना सिंपल वे, नॉर्मल ऐसे करते थे। ठीक है। तो उसके बाद अभी बता रही हूँ तुम्हें, 4 5 years बैक की बात बता रही हूँ, व्हेन माय डॉटर स्टार्टेड हाँ। लर्निंग आसन एंड ऑल। तो वन डे शी वाज डूइंग हेडस्टैंड, मैंने कहा क्या कर रही है, लग गिर जाएगी ऐसे करके, बिकॉज मेरे को था कि लेवल, इतना लेवल हाई मत करो, क्योंकि हेडस्टैंड का मामला है, हेड का मामला हाँ। हाँ। है। शी वाज ट्राइंग। तो दैट थिंग गेव मी दिस थिंग कि यू हैव टू पुश, अपने डर के आगे जीत है, वो नहीं बोले स्लोगन किसी उसमें है, ये डर के हाँ। आगे जीत। तो मैंने जी। कहा दिस गर्ल इज डूइंग गुड, कि मतलब ये डर को पुश करिए कि नहीं मैं कर लूँ। ऑब्वियसली वॉल इज देयर, प्रिकॉशन हाँ। से यू आर हाँ। डूइंग, एंड शी वाज हाँ। डूइंग गुड करी। तो मैंने कहा व्हाई डोंट आई ट्राई। तो फिर मैंने भी एज ऑफ हम्म। 45 या बोलो 46 बोलो दैट टाइम, ठीक है, तो आई स्टार्टेड। तो मुझसे हुआ नहीं उस समय, फिर आई टुक अ चैलेंज, मैंने कहा मुझे करना है, करना है। तो हम्म। डेली आई प्रैक्टिस यूट्यूब पे देख के, और ऐसे कैसे आई वाज प्रैक्टिसिंग। फिर आया कोरोना। हाँ। ठीक है। अच्छा, कोरोना उस समय तक हम नॉर्मल करते हैं, अपनी ब्रीदिंग वगैरह थोड़ा फोकस, बिकॉज यू नो आसन, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, तो आप अपना कुछ करते रहते हो। जो कोरोना आया तो फिर वो बार बार वॉक करना भी बंद हो गया, तो घर में ही आर डूइंग ना ओमकार की चैंटिंग, को बहुत मेंटल स्ट्रेस को उसने सबसाइड करा। बच्चों की हेल्थ का भी थोड़ा सा सब प्राणायाम करने लगे, और हम्म। बच्चे कर ही रहे थे। फिर ऐसे ही जस्ट आई वाज सर्चिंग ऐसे उस पे, तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू जॉइन बोधि स्कूल ऑफ योगा ऑन एज अ ऑनलाइन। ओके। तो व्हेन आई कनेक्टेड टू देम, तो मैंने कहा मुझे एडवांस सीखना है, एडवांस आसन सीखना है। तो दे सेड कि हाँ आप सीखिए, आप इसमें एनरोल हो जाइए। बट आई वाज नॉट अवेयर कि इट वाज अ ट्रेनर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो आई ओके। गॉट अ ट्रेनर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ level 1। Then in that level 1 I did well, so they promoted to me level 2 and level 3. हम्म। You can do that without charging anything, you know। तो ये मेरे को पुश किया, एनकरेज हुआ, तो मेरे को लगा अच्छा आई कैन पुश माई सेल्फ, इसमें मेरे को कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने वो लर्न कर लिया। तो आई गॉट अ ट्रेनर सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन फॉर 500 आवर्स कोर्स का पूरा मेरे को सर्टिफिकेशन मिल गया। फिर दैट टाइम, उसके बाद से नो लुकिंग बैक, आई एम टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन। Yes, I am dedicated, I am disciplined, and whenever anyone joins me, I say consistency, regularity. This matters a lot. You are saying कि आपके हिसाब से योग क्या है? तो योग मेरे हिसाब से यार ये आसन मासन नहीं है, योग है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद योर ब्रेथ, रिलेशनशिप विद यू। आप क्या हो, रिलेशनशिप विद यू, तुम क्या हो, रिलेशनशिप विद माय डॉटर, माय हस्बैंड, माय सन, माय मदर, माय फादर, मेरे जो फैमिली है सबसे, दैट कनेक्शन, दैट ज्वाइनिंग, मेरे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ज्वाइन होना इज रिलेशन, दैट इज योग फॉर मी। इट इज नॉट कसरत, इट इज नॉट सर्कस। आप आप देखोगे कि जब आप कनेक्टेड हो तो चीजें अपने आप सही होती जाती हैं। हम्म। राइट। ट्रूली। अगर रिलेशन की बात देखो कि अगर तुमसे मेरा रिलेशन सही नहीं है, और मैं तुमसे सही से कनेक्ट नहीं हुई, तो मेरा रिलेशन तुमसे टूट जाएगा। उसी टाइम ब्रेक हो जाएगा। हाँ, तो योग ये बोलता है यम नियम आसन। तो यम इज सोशल डिसिप्लिन, तुम्हारा मेरा कैसा है, मैंने अपनी 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 सोसाइटी को, अपनी कंट्री को मैं किस तरह से कनेक्ट हो रही हूँ। ठीक है, छोटी छोटी चीजें, जैसे सपोज कि मैं दूध की थैली काट रही हूँ, मिल्क आ रहा है, वी आर टेकिंग पैकेट मिल्क ओनली, घर वाला तो अभी नसीब नहीं होता। तो मैंने कहीं देखा था कि डोंट कट छोटा वाला पार्ट अवे,
ठीक है, उसको उसी में रहने दो, देन पोर योर मिल्क। व्हाई? बिकॉज एक छोटा पार्ट इज नॉट रिसाइकल्ड, वो रिसाइकल नहीं होगा, वो मिट्टी में दब गया, पानी में चला गया, समुद्र में चला गया। तो आई फील कि ये कितनी छोटी सी चीज है, वी कैन डू इट। तो मुझे लगता है दिस इज यंग, वी आर कनेक्टेड फॉर सोशल एनवायरमेंट, राइट? तो ये योग है ना, हमने अपने कंट्री के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने एनवायरमेंट के लिए हमने कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया, इससे मेरा क्या जा रहा है? Exactly, and rightly said, ma'am. And it's more about your authentic connection between या people to people, and we are living in a social world, so we या called as a social animal. Rightly said. And आपने ये बहुत अच्छी बात बोली, yoga, it's more not more about the kasrat and all. It's या more about your relationship within yourself, no यस। matter what कि अब आप क्या कर रहे हो. बिल्कुल सही कह रही हूँ। अब ये तो हो गया सोशल वाला, तो उसमें यू फील अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, किसी को किसी के चेहरे पे हैप्पीनेस देख के अच्छा लगता है ना, तुमको अच्छा Exactly. लगता है ना, किसी के कुछ वो करती हो। Yes. तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो या फ्रेंड्स के लिए कुछ कर रहे हो तो अच्छा लगता है, राइट? वो वाली Yes. बात। अब आ गए नियम। नियम सेकंड, इसका जो आप पतंजलि के योग सूत्र में पढ़े हैं, तो सेकंड नियम हो गया, यम नियम हो गया। नियम क्या कि मुझे टाइम पे उठना, डिसिप्लिन, जैसे तुम्हारा मैंने पढ़ा था कहीं, तुमने लिखा है डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, डिसिप्लिन से आप आगे ग्रो करते हो। तो डिसिप्लिन, नियम कि आपको भी मुझे सुबह उठना तो उठना है, फिर वो आपकी साइकिल बन जाती है वैसी। ये Hmm. सब यहाँ का खेल है। तो यू आर कनेक्टेड विद दिस एरिया, आपके दिमाग से आप कनेक्ट हो रहे हो, आपके दिल से आप कनेक्ट हो रहे मैम हो, देन आप ग्रो। कहते हैं ना कि जो 70% होता है वो आपका शोल्डर टू ये होता है, एंड रेस्ट ऑफ द 30% वो आपको डिराइव करता है यहाँ को ऑपरेट करने के बिल्कुल, लिए. यही यही सब जगह आपको ड्राइव करता है, यही सब आपका स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस क्रिएटर है, सब यही तो है सारा। तो ये जब नियम में आपने डिसिप्लिन ले आया, आपने ये ले आया कि ठीक है, मेरे को जो नीड है मैं उतना ही करूं, मैं वांट नहीं करूं, मैं डिजायर नहीं करूं, तो वैसे ही आप कूल डाउन होते जाते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपका ये हो गया तो आसन, फिर प्राणायाम, ये तो आगे आगे आपके बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब आसन की बात करें तो मैं कहती हूँ कि जब आपने ब्रेथ से अपनी बॉडी से आप कनेक्ट हो गए तो बॉडी फ्लो करती है। ठीक यस. है, और आपने इन सब चीजों को जीत लिया, ये आपने जो मुझे आलस को जीत लिया, दैट इज विन ना। तो मैंने विन योगे कर दिया। अभी अपने आप, जब आप अपने आप को जीतोगे तभी यू आर इन योग। यस. यस, बहुत अच्छा आपने कॉन्सेप्ट लगाया, विन योग. इवन मैं भी सोच रही थी कि विन योग का रियल मीनिंग क्या है. सो नाउ आई गॉट द या आंसर. यू हैव टू विन योरसेल्फ, पहले अपने से तो जीतो। मेरा नाम भी मनस्विनी है, तो विनी पीछे था, तो फिर मैंने कहा ये विनियोग करते हैं इसको, तो इस तरह से यस. इट हैपेंड। और मेरा एंड कोई ऐसे टेक्निकल कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बस मैं क्लासेस लेती रही, फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा, लोग अपने अच्छे लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए। वही है ना कि एक जना आया फिर कारवां बनता गया, बट जी. नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं। आज के जी. डेट में 4 बैचेस चलाती हूँ, सिंगल हैंडेड चलाती हूँ, लेकिन हाँ अब मैंने कुछ ट्रेनर्स भी रख लिए साथ में, तो दे आर सपोर्टिंग मी। जी. एंड बिकॉज अब देखो ये भी तो होता है ना, बच्चे वाले हैं लेकिन हाँ दे नीड अर्निंग, सबको अर्निंग भी चाहिए, तो मैंने कहा जी. जितना हो जाए धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन हाँ बढ़ेंगे जरूर। बस कंसिस्टेंसी रखो, अपनी रेगुलरिटी रखो, वी विल अचीव आवर गोल्स। तो ये दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, मैम. एंड बहुत अच्छे से आपने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया. एंड स्टार्ट आपने बहुत अच्छा बात बोली कि कंसिस्टेंट होना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप विन योग कर पाओगे किसी भी बिल्कुल, फील्ड में, कह लीजिए. किसी भी फील्ड पे, किसी हाँ, भी किसी फील्ड पे, में. हाँ. किसी भी फील्ड पे ये। और अपनी डिसिप्लिन आगे तो यार बहुत चीजें हैं कि आपका रूटीन समझ जाता है, आपके पास इतना सारा टाइम होता है, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, अगर आपका डिसिप्लिन है तो टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। तो मैम इसी डिसिप्लिन में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आज की जो लाइफ है बहुत ही भागा दौड़ी वाली है. सो वुमेन बहुत स्ट्रगल करती हैं कि अपनी, एक तो लाइफ में एज अ होम मेकर, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, टू मेंटेन देयर फैमिली लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, और एज वेल एज देयर ओन वेल बीइंग, देयर ओन फिटनेस जर्नी. सो मैम आप ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहेंगी टू गिव some important nuggets how they incorporate wellness into their lifestyle. सो वो कहाँ से स्टार्ट करें जिससे वो उनको बेनिफिट हो, स्टार्ट स्मॉल से. आप उसके बारे में आप कुछ बताइए. ये है ना, ये इसको बस छोड़ देंगे। बहुत सही. मैं तो कहूँ कि मतलब इसको देखना, ठीक है, हमें जो देखना है हमने देखा, हमने टाइम सेट कर लिया 15-20 मिनट, लेकिन हम उससे आगे निकल जाते हैं 2 घंटा, पता नहीं पड़ता। जी. बस मैं सन मेंशन कि उसका जो रूममेट था वो पूरे दिन ये देखता रहा, उसको टाइम का पता नहीं पड़ा। एडिक्शन हो ठीक गया. है, एडिक्शन हो जाता है, तो इसको हम छोड़े, 15-20 मिनट से ज्यादा टाइम ना दें तो हमारे पास बहुत टाइम निकल जाएगा। और
सबसे बड़ी बात कि हमारा माइंडसेट। हमको ये लगता है एज अ वुमन कि हम अपने लिए टाइम अगर निकाल रहे हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली। टाइम हम कैसे दे सकते हैं अपने आप को? ये तो हमारे बच्चे का टाइम है, ये हस्बैंड का टाइम है, अभी इधर देखना है उधर देखना है। यार, अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, रेगुलर रहोगे, कुछ अपना रूटीन सेट करोगे तो 1 घंटा आप अपने आप में निकालो। ये आपके लिए बहुत जरूरी है और निकाल सकते हो। ये दिमाग से हटा दो कि नहीं अभी तो आज बच्चा का देखना है, ये करना है। अब कोई ना कोई टाइम सेट करो। बाकी समय तो आपके पास में है, यू कैन इजीली मैनेज। तो अपना टाइम आपको निकालना पड़ेगा। यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज कि हाँ अभी मेरा 6 से 7 मेरा योगा सन है, या मुझे जिम जाना है, या मुझे रन जाना है। तो ठीक है, कभी बच्चे बीमार हैं, कुछ है तो समझते हैं, सभी लोग समझते हैं, आप खुद भी तो उसको कट ऑफ कर दो, कम कर दो। कुछ और कर लो, कुछ और हेल्थी एक्टिविटी कर लो, बच्चे के साथ में इंक्लूड हो जाओ, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता जी। है। जी, ठीक मैम है, बहुत अच्छी बात बोली कि ये। बहुत हेल्थी में है। अब जैसे जो लोग, हम लोग तो बहुत ही वी आर प्रिविलेज, हम एक इतने इतने अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं। हमारे इन लॉज, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड सब हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन कई लेडीज ऐसी हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है। गाँव में देख लो, कस्बों में देख लो, ज्यादा पॉपुलेशन तो हमारी वहीं पर है। जी। से उठ के रात तक वो चूल्हा चौका ही कर रहे हैं। हम्म। मैं मेरा जो फैमिली है, मैं गांव से आती हूँ, मेरे मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, भैया प्रिविलेज हमें पेरेंट्स ने शहर में पढ़ाया, हम वहां से पढ़े। लेकिन हम जब भी गाँव जाते हैं, मैं तो गाँव में जाती हूँ, आई जस्ट लव, मैं वहां जाना बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं देखती हूँ ना कि मतलब कैसी उनकी लाइफ है, सुबह से लेकर शाम तक उसी में है। और अब जो यंग जनरेशन है, जो यंग बहुएं आ रही है, वो इसमें है मोस्टली। बच्चे इसमें है, बैठे रहते हैं, लड़कियां इसमें। तुम्हें तो, मेरा तो वशीयता ये है कि गर्ल्स गर्ल्स को दे हैव टू पुश देमसेल्फ कि आप थोड़ा सा 20 मिनट्स 30 मिनट्स कुछ नहीं होता, उठते में अपना टाइम दो अपने आप को। ये तो तुम्हें दोगे तो आगे की तुम्हारी लाइफ ठीक रहेगी। बहुत चीजों को तुम ओवरकम कर जाओगे। स्ट्रेस, कॉलेज में स्ट्रेस, स्कूल में स्ट्रेस, तुमने कितने न्यूज़पेपर में कितने जी। सारे स्टोरीज आती है। डर लगता है। हमारे बच्चे भी तो इस स्टेज में है। अगर वो योगासन को, मैं योगा नहीं बोलूंगी, योगासन को, प्राणायाम को अपने रूटीन में डाल लें। जैसे हम ब्रश करते हैं वैसे हमें करना है, 20 मिनट या 30 मिनट या जी। जी। 15 मिनट या 10 मिनट। यस। तो बिलीव मी, आधी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी। दे हैव हैप्पी, फिट एंड हेल्दी लाइफ अहेड। नहीं, आपने बहुत सही बात बोली कि अगर हम इस मोबाइल को अपने लाइफ से कट कर दें और अपने प्रोडक्टिव टाइम के लिए हम अपना समय निकालें, तो हमारे पास समय है। कहने को तो अगर हम बोले 24 घंटे सभी के पास है, बट उस 24 घंटे को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। मैं दूसरों का नहीं, मैं खुद का ही बोलती हूँ। ठीक है, मुझे रील क्रिएट करनी है, मैंने क्रिएट करी, बाकी इसके बाद मैंने रील स्क्रॉल करी, क्यों? मैं हाँ। अपना टाइम वहां पे कट कर सकती हूँ ना, वहां पे हाँ। अपना कुछ और, मैं अपने आप को प्रोडक्टिव चीज में लगाऊं। ये बहुत जरूरी है। रील्स देखो, सही बात है, बहुत बहुत चीजें मिलती है, लेकिन टाइम तो सेट कर लो तो टाइम काफी सेट चीजें कर कर दो। सकते हो। नहीं नहीं, बहुत सही बात बोली है। एंड मैं अभी आपसे अगला प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपका ओवरऑल पर्सनालिटी एंड ऑरा भी देखा है। द फेस शुड बी लाइक योर, लाइक सिमिलर सेम एज 10 years back. So, ma'am, what is the beauty behind this? Because as you are a face yoga expert, face yoga, so face yoga के ऐसे कौन से अप्रोचेस हैं और कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसके थ्रू हमारा ओवरऑल जो वेलबींग होता है, ओवरऑल जो नर्चरिंग वेलबींग होता है, उसको हम किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं? जैसे मैंने आपका तुम्हारा तो देखा बहुत है। सुंदर है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग यस। बहुत मायने करती है। तो इट शोज, तुम पॉजिटिव हो, दिख रहा है तुम्हारे उसके ऊपर, ठीक है ना? अपने से, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना दिखता यस। है, वो झलकता है। ठीक है। और ये दो चीजें हैं कि अपने पे जी। कॉन्फिडेंस रखो, अपने से प्यार करो। अब ऐसा प्यार नहीं, इतना सेल्फिश प्यार मैं नहीं बोलती कि भाई जी। बच्चे को खाना नहीं मिला और अपने पे आप लगे पड़े, वो वाला वो सेल्फिश वाला प्यार नहीं। मैं नहीं बोलती। मैं जी। बोलती हूँ लेकिन हाँ, अपने से टाइम, मतलब अपने को टाइम देना इज अपना प्यार। ठीक है हम्म। ना? मैं जब यहाँ पे क्लासेस में शवासन कराती हूँ, तो मैं कहती हूँ हैव अ डेट विद यू, हाँ। फॉर यू, बाय यू। यस। हैव अ डेट। ये अपने कनेक्शन, अपने अपने आप कनेक्शन बनाया। तो जब आप कनेक्शन बनाते हो ना, तो सब कुछ ही ग्लो करता मैम, आपने बहुत है। अच्छी बात बोली कि मैं इस चीज को बहुत ही रिचुअल के जैसे फॉलो करती हूँ। हैव अ सोलो डेट विद योर सेल्फ, नो मैटर व्हाट। आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, बट जो मेरा जो सोलो डेट है
वो मैं जा करके, भले ही मैं कॉफी पीऊँ या मैं कुछ भी राउंड लगा कर आऊं गाड़ी से, बट मैं अपने साथ टाइम जरूर स्पेंड करती हूँ। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि मुझे पार्लर जाना है या ये करना, बट मुझे वो हाँ छोटे जॉयज ज्यादा पसंद है, rather देन टू आर्टिफिशियल आवर ओन लाइफ, सो हाँ दैट वो दिखती है, क्रिएट हाँ। होती और वो जैसे तुम बाहर जा रही हो तो मैं कह रही हूँ कि बाहर जाओ, ठीक है, आप घर पे भी अपडेट कर सकते हो, है। ठीक है, यस। अपना एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बना लिया, अच्छी से कोना ढूंढ लिया, जी। जस्ट चिल, हैव अ कॉफी, हैव अ यस। टी, और बाहर देखो अच्छी सराउंडिंग है तो उसको मिस मत करो, बैठो, छत पे चले जाओ, है यस, ना, दैट इज टोटली रिलेटेबल। एंड हाँ। पता है, मतलब इवन आई एम ऑल्सो लाइक, हम मैं सबके जब घर में जाती हूँ तो फिर मुझे अपने हमेशा घर की याद आती है, बिकॉज आई एम अ होम बॉर्डिंग पर्सन। मतलब मैं अपने घर में ऐसे स्पेस लगा के रखती हूँ कि मुझे सच में, चाहे हम किसी भी बाहर भी चले जाएं, लेकिन मुझे आज भी अपने घर की याद आती है, नहीं मुझे घर जाना है, अपने ही एरिया में बैठना है, अपने एरिया वहां में बैठ बैठना करके है, खाना हाँ, खाना है। क्योंकि हमें पॉजिटिव ऑरा भी तो जी मिलता है वहां से, जी 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 राइट। जी। अच्छा, तो फेस योगा की बात कर रही थी, तो फेस योगा भी ऑल्सो हाँ। थैंक्स टू बोधि स्कूल ऑफ योगा, मैंने सब कुछ वहीं से सीखा है, तो वहां पे मैंने फेस योगा इज नथिंग बट फेशियल एक्सरसाइजेस, विद डिफरेंट अप्रोच एंड विद योर ब्रेथ, ओके। कनेक्टिंग एक्सरसाइजेस विद द ब्रेथ। सिंपल सी बताती हूँ तुम्हें कि जैसे कनेक्शन हम बोलते हैं कि क्या है कनेक्शन, क्या है, ठीक है, जैसे हाथ उठाओ, इसको बंद करो, उठाओ, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, आईज क्लोज करो एंड जस्ट ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। नाउ ब्रीद इन, ओपन, एक्सेल, क्लोज, ब्रीद इन, ओपन, एक्सेल, करो, 1 2 3 4 5, देन रिलीज, रिलैक्स। तो दिस इज कनेक्शन। जब आपने किसी भी मूवमेंट के साथ में ब्रेथ का कनेक्शन किया, तो ब्रेथ फ्लो हुई ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, वो मूवमेंट हुआ, बॉडी का मूवमेंट हुआ, एक एक एनर्जी का फ्लो होता है, ये जो फ्लो, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस व्हेन यू गो विद द योगा, विद यू गो विद फेस योगा, एक बहुत अच्छा लगता है। जैसे अब देखो, सिंपल सा है, ब्रीदिंग के लिए एक मैं किसी का मैं सेमिनार मैंने अटेंड किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, हमारे यहाँ कितना अच्छा है कि हम जब यज्ञ करते हैं तो दो लकड़ी होती है, उसको घिसते हैं, उनको अरणी बोलते हैं, अरणी, हम्म। ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या है, एक लकड़ी, दूसरी लकड़ी क्या है, हमारी ब्रेथ, तो उनको घिसा, जब हम घिसा तो क्या हुआ, फायर, देयर इज फायर, अग्नि फायर उत्पन्न आता है। है, अग्नि उत्पन्न हुई, तो अग्नि क्या है, दैट स्टेज इज मेडिटेशन, यू नो। तो कितनी अच्छी चीज उन्होंने मतलब बताई। आरती क्या है, हम्म। ब्रीद इन, हम्म। ब्रीद आउट, हम्म। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये आरती है। ये आरती का उन्होंने बताया, इतना सुंदर बताया, और इसी के अंदर जब आप फ्लो करते रहे तो आपका मेडिटेशन लग गया, हम्म। फिर तो आपकी एनर्जी पूरी, हर जगह आपकी बढ़िया एनर्जी है। आपको पता ही, एनर्जी का हम बोल रहे हैं तो यूनिवर्स से हम कनेक्ट होते हैं, एक छोटी सी एनर्जी हमारे अंदर है, एक बड़ी एनर्जी बाहर है, जब वहां से कनेक्ट हो गए तो क्या कहते हैं वो सोमरस, सोमरस, वो जो बड़े बड़े जो हम तो योगी है नहीं, लेकिन हम ट्रेनर है, लेकिन हाँ, कुछ तो अच्छा लगता है, कुछ तो जी होता है। तुम नहीं समझोगे, राहुल, टाइप्स वाली बात है, जो जी जी। करता है वो समझता है, ठीक है। एग्जैक्टली exactly. हाँ। नहीं नहीं, बहुत and ये बहुत स्मॉल स्मॉल टेक्निक जैसे मुझे आपने बताया, तो मैं डेफिनेटली ये ट्राई करूंगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके ब्रीदिंग का फ्लो और आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसके साथ अलाइन होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ। अब जिम में, बस जिम में यही कमी होती है, और आसन में यही अच्छी बात है कि जिम में आप ब्रीदिंग पे इतना ध्यान नहीं देते हो, यहाँ पे अगर आपने मूवमेंट के साथ में ध्यान दिया तो बस वहीं पे आपका कनेक्शन हो गया। तो योगा गिव्स यू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो, एंड्योरेंस ऑल्सो, मोबिलिटी ऑल्सो, व्हाट नॉट। और जी स्पिरिचुअलिटी तो है ही, वो तो अपने आप शायद आ जाती होगी, मैं अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ, लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट होना, इसमें मुझे अच्छा लगता है अपने से कनेक्ट होना। बस ये चलता रहता है, श्वेता। और योग मतलब फेस योगा का जो मैंने बात छोड़ दी बीच में, तो यही बता रही हूँ, अगर डेली आप अपनी एक रिचुअल बना लो, जैसे बॉडी के लिए बनाते हो, यहाँ पे भी 57 मसल्स हैं, उनकी भी थोड़ी सी वर्जिश करो, उनका यू आर गिविंग सम गुड एक्सरसाइज एंड गुड मसाजेस, पैम्परिंग योर सेल्फ, तो वो अंदर से ग्लो आता है। सैगिंग, जो स्किन की सैगिंग है, डार्क सर्कल्स है, रिंकल्स हैं, वो धीरे धीरे कम होते हैं। तो यू हैव टू एज ग्रेसफुली, राइट, नेचुरल वे में आगे जाओ। तो वही
है। केमिकल बोटॉक्स फिलर्स की जरूरत नहीं है। एज तो सबको ही होना है। जी जी जी। एंड बहुत आपने अच्छी बात बोली कि अपना एज ग्रेसफुली रखना है विदाउट एनी केमिकल्स, यूजिंग एनी केमिकल्स, एनी बोटॉक्स। एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हाउ यू नर्चर योर सेल्फ विद सो मच अवेयरनेस, राइट मैम? सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैं तो श्वेता कभी राइट वो काइंड भी ऑफ नहीं लगाती, टेक्निक के सोप भी साथ नहीं करें। लगाती मैं। सोप भी नहीं लगाती फेस पे, नेवर। नेवर पुट सोप, पता नहीं। हाँ। अपने आप ही सब, मतलब जो भी कुछ नेचुरल घर वर का है वही लगाती हूँ। कभी मैंने सोप बहुत ही शायद कम लगाया होगा। अब शायद घर से इतना निकलती भी नहीं हूँ कि मुझे जरूरत भी नहीं है। तो आई डोंट फील लाइक पुटिंग एनी मेकअप, हम्म। डोंट पुटिंग लाइक पुटिंग हेयर कलर। हाँ। जैसे हो वैसे हो, अपनी अंदर की हीलिंग करो, अपनी अंदर की सफाई करते रहो। जैसे चमक। बोलते हैं ना हम लोग, दीपावली में हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं, तो सिमिलरली हमें अपनी बॉडी की भी क्लिनजिंग ऐसे ही करनी होती है। वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, वो आपको खुद से ही लगेगा। हाँ, खुद से लगेगा। ये एक्सपीरियंस करने वाली चीजें हैं। बस ये है कि रेगुलर 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 रहोगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। इसीलिए तो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी। ऑनलाइन में ये है कि आपने बस क्लिक किया और आप बैठ गए यहाँ पे आके, तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ। वहां पे जाने आने में टाइम वेस्ट है। और ऐसी ऑनलाइन क्लासेस लो जिसमें थोड़ा सा कम लोग रहते हो। 15-20 के अकॉर्डिंग अगर अगर चल रहा है क्लास में, अगर आपको यस। ट्रेनर देख पा रहा है, तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाते हो। ट्रेनर भी आपको गलत नहीं आने देगा। करते कंप्लीटली, रहना चाहिए, कुछ ना कुछ कंप्लीटली करते रहना चाहिए। अग्री विद योर पॉइंट मैम। एंड मैम आप ये बताइए, जैसे मोस्ट वुमेन जो होम मेकर्स होती हैं, मतलब जो अगर सुनेंगे हमारे सीरीज को, तो वो अपनी सेल्फ केयर में किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए उठाएं और कैसे प्रायोरिटाइज करें। बिकॉज क्या होता है, हम सब अमूमन हमारे घर में जो औरतें हैं, वुमेन्स हैं, तो वो गिल्ट में आ जाती हैं कि अरे मैंने बच्चे का ध्यान रखा। वही। और तो वो अपनी सेल्फ केयर को किस तरीके से इम्प्रोवाइज करें और छोटे छोटे स्टेप्स कैसे लें, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? सबसे पहले तो वॉक करो। वॉक से स्टार्ट करो। हैव 10 मिनट्स 20 मिनट्स वॉक डेली, चाहे इवनिंग चाहे मॉर्निंग चाहे आफ्टरनून। इवन ऑन योर वर्क प्लेस यू आर डूइंग, अगर सपोज खाना ही बना रही हो, खाना बना रही हो, खाना बन गया, तो घर में वॉक कर लो। हम्म। लगा लो। आजकल तो सब लोग फिटबिट पहनते हैं, स्मार्ट वॉच पहनते हैं। जस्ट जस्ट मूव इट। कुछ भी नहीं कर सकते तो आफ्टर एवरी 10 मिनट्स मूव 250 स्टेप्स। यू आर डन। हम्म। सिंपल है। ये कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बस यू हैव हम्म। टू कीप मूविंग। खाने का खाने का ये है कि टाइम पे खाओ। जो आपने टाइम सेट कर लिया, अगर आपने सोचा है कि 9 o'clock आप ब्रेकफास्ट करोगे, 8 तो उस पे ही करो। ठीक है। फिर आपने सोचा कि लंच आप 1:30 या 2 के बीच में करोगे, तो उस समय ही करो। और डिनर अर्ली, बट वेरी लाइट लाइक अ बैगर। सोचो घर में कुछ बना ही नहीं है। नहीं, तो कंप्लीटली लॉन्ग की रिलेट ज्यादा विद दिस जरूरत कि नहीं है बॉडी को। जरूरत उन लोगों को है जो ज्यादा जिम कर रहे हैं, ये एथलीट है, जो ये कंपटीशन में दौड़ते हैं, जहाँ जो 4-4 5-5 घंटे, उनको स्पेशल डाइट की जरूरत है। हमें स्पेशल डाइट की जरूरत नहीं है। एक बैलेंस फूड हो जिसमें थोड़ा सा कार्ब हो, थोड़ा सा प्रोटीन हो, थोड़ा सा अपने ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, जो आपको सैलड और फ्रूट से मिल जाते हैं। 2 या 3 फ्रूट डेली खा सकते हैं हम। क्या है, पपीता खा सकते हैं, केला खा, लोग सोचते हैं केला पपीता ये सब नहीं खाना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए, फैट बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक केला खाइए, थोड़ा सा पपीता खाइए, अनार खा लीजिए, एक सेब खा लीजिए। जो आपके पास में अमरूद हो रहा है, अमरूद खा लो। ये सब जो जस्ट रुजुता दिवेकर बोलती है, जस्ट फॉलो। जो यस है यस। एंड मैम पर्सनली इवन आई ऑल्सो फॉलो रुचिता दिवाकर, क्योंकि वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से कनेक्ट करती हैं। एंड उन्होंने एक हाँ, बात जरूर बोली थी कि आप जिस रीजन को बिलोंग करते हो, आप वही बिल्कुल वाला खाना खाओ। जैसे मैं बिल्कुल। यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे हाँ पता है कि मेरे लिए रोटी कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, राजस्थान के रोटी लिए नहीं उनकी, छोड़नी। हाँ, हाँ, उनकी गट्टे की सब्जी और उनका कुछ और स्पेशल, उनके लिए और उनका खाने का पकवान होंगे उनका। और जो साउथ इंडियन, उनके लिए जो मोटे राइस है, वो उनके लिए नेसेसिटी है। उनके लिए नेसेसिटी, क्योंकि हाँ, उनके मतलब गट्स में वो बैक्टीरिया है जो उसको पचाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक यस। है। तो ये सब करना है हमने। तो कोई कोई ऐसा कुछ वो, मतलब वी आर नॉट डाइटिशियन जो हम इतना वो हाँ। बोलते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम ऐसी हेल्दी लाइफ, तो यार आप इस एज में भी आप फिट रह लोगे। बहुत कम प्रॉब्लम होंगी। नहीं तो डायबिटीज, थायराइड, वेट की तो प्रॉब्लम है ही, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। शुगर। तो शुगर तो हाँ, तो ये सारी चीजें तो, ये तो हमारी लाइफस्टाइल की डिजीजेज हैं। ये तो हम कम कर सकते हैं। ठीक है। और आजकल तो इतना कुछ है। थोड़ा सा डिसिप्लिन, ठीक समय पे ठीक ढंग से ठीक ठीक काम करने की आदत, मेरे नाना कहा करते थे, तो भाई हमने तो वही फॉलो करा है। और हम चाहते हैं कि सब बच्चे भी हमारे फॉलो करें। जी जी।
एंड बहुत अच्छी बात बोली, डिसिप्लिन है साथ में, और अपने खान पान का भी बहुत अवेयर तरीके से ध्यान रखना है। मैम, आपका ये जो माइंडसेट शिफ्ट हुआ है, आप बचपन से इस चीज को फॉलो कर रही हैं, आपके माइंड में एक तरीके से इट बिकम्स योर सेकेंड नेचर ऑफ योर स्किन। बट यस। व्हाट द अदर women really need to work on, what kind of mindset shift so that they can be into that essential part of their own life? उनको क्या embrace करना चाहिए, उनको क्या माइंडसेट शिफ्ट में लाना चाहिए सो दैट कि उनकी वेलबींग और उनकी फिटनेस बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़े? माइंडसेट ये चेंज करना है, जो दिखता है वो सोना नहीं है। पहले देखो, उसको पढ़ो, समझो, उसके बाद घर में लेकर आओ। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, अच्छा ये अच्छा अच्छा ठीक है यार, अभी तो इस वीक तो टाइम नहीं है, जो मैगी 2-3 मैगी के डब्बे डालिए। अब एक बार देखो सही, आपने कार्ट में लिया क्या है, कितना फ्रेश है, कितना प्रोसेस्ड है। मैदा, सब सब बोलते हैं, मैं तो कोई स्पेशल नहीं बोलूंगी यार, मैदा छोड़ो यार, चीनी छोड़ो यार, है, और ये अपना रिफाइंड ऑयल छोड़ो। इट्स वेरी थोड़ा सा डेंजरस। सोचना, सोचो, थोड़ा सा सोचो, प्लानिंग से चलो। ये माइंडसेट चेंज कर दोगे तो जब खाना ठीक हो जाएगा तो आधी चीजें ठीक हो जाती हैं। एक्सरसाइज इज तो 30%, रेस्ट इज योर फूड ओनली। योर फूड हैबिट्स मेक्स इन अ डार्क अच्छा, इन। अब जनरली क्या होता है, इवनिंग में क्या बनाना, अच्छा ठीक है सैंडविच, चलो पिज्जा ऑर्डर, आजकल तो ये हो गया है, इजीली डिलीवर। तो लोग कहते हैं हम ज्यादा नहीं खाते, मैंने कहा कितना खाते हो, कि वीक में एक बार, मैंने कहा ये बहुत ज्यादा है। अगर मुझसे पूछो तो मैं बोलूंगी 2 महीने में एक बार, शायद 2 महीने में एक बार भी नहीं। तो ये अगर कर लो तो, एग्जैक्टली। मैं ये नहीं बोलती कि मेरे बॉडी में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हाँ, अब खाने का ऐसे बाहर का खाने का मन भी नहीं करता। और शायद बच्चों ने ये देखा होगा, तो बच्चों में भी ये इनवाइब हो रहा है कि हाँ, हमें बाहर का कम से कम खाना चाहिए। बच्चे हॉस्टल में करे हैं, लेकिन हाँ, ये नीर सब्जी रोटी दाल अपना खाया और ठीक है, जो हॉस्टल में मिल रहा है वही खाएंगे, बाहर का चीजें कम खाओ, तो ये शायद आ जाता होगा। नहीं नहीं मैम, बच्चे आप देखते आपने हैं, बहुत तो अच्छी ये बात बोली। माइंडसेट मेड्स को, लेडीज को स्पेशली माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और थोड़ी सी मेहनत करो। रात को बना लो चपाती, चाट बनानी, चपाती बनाने कुछ आता नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात बोली, चपाती बना के आपकी खुद की भी एक्सरसाइज हो जाती है, आपकी शोल्डर्स की, नो मैटर लोग व्हाट। सोचते हैं, अरे क्या यार, ऑर्डर कर लो यार आज, ठीक है, फिर पता ही नहीं पड़ता। अच्छा लिख लो, एक माइंडसेट तुम बात करो, लिख लो कि आज आपने क्या क्या खाया है, पता पड़ जाएगा आप कितने गलत खा रहे हो। जी जी चीट जी मत जी। करो, उस लिखने में चीट मत करो, क्योंकि वो आप ही देख रहे हो ना। आपने बहुत सही बात बोली, और ये मतलब बहुत ही, अगर हम फॉलो करें इसी तरीके से, हमारा शिफ्ट हो सकता है, हमारा खुद का नजरिया भी। अरे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, और अब अगर रेगुलर हो एक्सरसाइज में, योगा में, जिमिंग में, किसी में भी, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ना, तो फिर आप ये गलत चीजें खाते भी नहीं हो। होता एग्जैक्टली है ना। आप कॉन्शियस हो जाते हो कि अरे मैं इतना तो वर्कआउट कर रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, तो मैं ये गलत चीजें ना खाऊं, मैम। तो मैम, खाने इंक्लूड से एक एक्सरसाइज। चीज, खाने से एक बात याद आई, मैंने आपकी एक रील देखी थी केसर वाली, बहुत वायरल हुई, और मुझे वहां से मैं आपके साथ कनेक्ट हुई। एंड मैम, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे क्या? मतलब उस रील में आपने एक फूल है, आप उसका नाम बताइए, और उसको आपने केसर के फॉर्म में करके, एंड उसको आपने उसका प्रोसेस बताया, एंड उसको आपने खाने में भी यूज किया, तो आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए। तो श्वेता, मेरे को पता नहीं था कितनी वायरल हो जाएगी। बचपन वही, मेरी ना मम्मी का इतना ज्यादा इस पे है, इफेक्ट है मेरे ऊपर, कि हमने देखा था हरसिंगार के फूल, तो मेरे पापा इज हॉर्टिकल्चरिस्ट प्रोफेसर रहे हुए, मेरे ब्रदर इज अ हॉर्टिकल्चर प्रोफेसर। तो घर में हमारे हॉर्टिकल्चर का एक एनवायरनमेंट है, तो ये सारे प्लांट्स हमारे घर में लगे रहते हैं। तो मम्मी फूल तोड़ती थी और उसके फूल की जो डंडी थी वो सुखा लेती थी। तो सुखाती हूँ, हमने कभी ऐसा नहीं करा। हम खीर खाते थे, हमें खीर बड़ी अच्छी लगती थी, कि अभी केसर, मम्मी बोलती थी केसर है, केसर है। ठीक हम्म। है, तो हम खाते थे। जब बड़े हुए, शादी शुदी हो गई, तो फिर मम्मी ने बताया कि ये डालो, इसको सुखा लो, तुम लोग, तुम्हारे घर में भी हो रही है, डालो सुखाओ। मैंने कहा क्यों? मम्मी कहती है केसर है, देखो कितना अच्छा आता है। मैंने कहा अरे वाह। क्योंकि केसर हम कब कब हमें मिलती है, और ढंग की मिलती है, केमिकल वाली कैसी, सिंथेटिक होती है, कैसी होती है ना? तो मैंने यूज किया, बस इतना, आधा किलो खीर बनाई है, तो उसके अंदर वो जो पीछे वाला ऑरेंज पार्ट होता है, हरसिंगार का फूल होता है, हरसिंगार बहुत होता है, खुशबू देता है, बहुत पारिजात, खुशबू। या पारिजात, उसके ना फूल ब्लूम करेंगे रात को, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग नीचे गिरेंगे, अराउंड 5:30 to 6, मैंने देखा पीछे। तो बस गिरे हैं, आपने कलेक्ट कर लिए, ठीक है। जी। तो उनके बस वो व्हाइट वाला जो पेटल्स है वो निकाल के, पीछे वाला जो ऑरेंज पार्ट है उसको आप
वन डे में अगर अच्छी तेज धूप है तो वन डे में ड्राई हो जाएगा, नहीं तो अंदर भी ड्राई हो जाएगा। फैला के रख लो प्लेट के ऊपर, 4-5 दिन में ड्राई हो जाएगा, और धूप में तो 2-3 घंटे में ड्राई हो जाएगा। स्टोर इट एंड यूज। खीर में कर लो, अपने पीस के टीके में कर लो। ये शिव जी पे चढ़ता है, इट्स ब्यूटीफुल। इसको उसका बहुत वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है। जी। और क्रीम के अंदर अगर यू वांट टू अप्लाई द फेस पैक, तो उसके अंदर यू कैन पुट हम्म। टी बना लो। इसकी हम्म। टी भी बहुत अच्छी है। इसके ओके। हरे जो पत्ते हैं वो डालो, 4-5 काट के, 2-3 फूल डाल दिए, एंड बॉईल इट एंड हैव इट। इसको पी लो। ठीक है। तो वो उसमें कई सारे प्रॉपर्टीज, गूगल करो तो यूट्यूब करो, सब कुछ मिल जाता है इसमें। तो मैंने कहा बना दी, मैंने कहा चलो इस बार बनाते हो कि इतने सारे फूल हो रहे थे, मैं इतने सारे कलेक्ट कर रही हूँ, एंड आई गिफ्ट माई फ्रेंड्स जो मेरे ये पास पास में आते हैं। मैं तो ये करती हूँ, हल्दी उगाती हूँ, हल्दी भी गिफ्ट करती हूँ। हम्म। ठीक है। हल्दी खुद ग्रो करती हूँ अपने घर पे। ठीक है। अमेजिंग। मिलता है सामान अपना, मिल ही जाता है। घर से मैं ले आई हल्दी के पॉट्स, ले आई, मैंने ग्रो किया, तो हल्दी हो गई, मैंने फ्रेंड्स को दिया। ऐसे ही ये भी हर श्रृंगार का मैं हल्दी। मोरिंगा लीव्स, अभी मोरिंगा का बना रही हूँ। मोरिंगा, मोरिंगा कितना फायदा है वेट लॉस में, मोरिंगा इज गुड। तुम उसका भी डाल अमेजिंग अमेजिंग दो। अमेजिंग एंड बताए, बहुत अच्छा लगा। मेरे फ्रेंड्स को मैं जितना स्टोर कर सकती हूँ उतना करती हूँ, उसके बाद मैं गिफ्ट देती हूँ अपने फ्रेंड्स को कि यूज करें। जब मुझे फायदा हुआ है मेरी मदर को। मेरे घर में डॉग, मम्मी बताती है कि उसको मम्मी ने ऐसे वो खिलाए नीले पत्ते, वो खा गई, फूल खा गई मेरी डॉग। शी हैड ऑर्थराइटिस, वो ठीक हो गई। सी नेचुरल तरीके से हील हो गई। वो ठीक हो गई। पापा का साइटिका का पेन ठीक हो गया था, बिकॉज ऑफ दिस टी ओनली। मैम तो इट्स ये इट्स अ रियली मिरेकल एंड हाँ, ये मैं हमारे। अलग नहीं बोल रही, कोई किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछो क्या तो बताएगा। और या यूट्यूब पे बहुत है, सब लोग बोल रहे हैं, बाबा रामदेव जी के, और ये सब लोग बोलते हैं, बताते हैं। हम्म। तो ये चीजें अच्छी है ना, करनी चाहिए। जो हम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। यस सब एग्जैक्टली एंड आज के हमारे कॉन्वर्सेशन में मैम हम लोगों को और हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी टिप्स मिली है। हमें अपने ऊपर कैसे काम करना है, क्या फायदा है, अवेयरनेस माइंडसेट के साथ हमें अपने लाइफ को कैसे इम्प्रोवाइज करना है। ये छोटे छोटे टेक्निक्स के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी लाइफ सस्टेनेबल हमेशा ही रहेगी, बट विद द राइट माइंडसेट। हाँ बिल्कुल। और एक तुम्हें और बता दूं, अभी तुम आंखें बंद करो, तुम्हें एक इंस्टेंट रिलैक्सेशन देती हूँ मैं। देखो, आंखें बंद करो, ऑब्जर्व योर जॉस, आर दे टाइट, टीथ, दे आर क्लेंच्ड विद ईच अदर? इफ यस, just drop your jaw, relax your teeth and tongue, open your mouth a little, keep a smile on your face, take a deep breath, open the chest, fill the air completely, slowly, slowly relax, chest will fall down, down. Keep your jaw dropped and relax. Release, relax. Open your eyes. तो क्या होता है, कैसा लगा? कुछ लगा? इनिशियली यहाँ पे थोड़ा सा हैवी लगा, थोड़ा सा, एंड नॉर्मल रिलैक्स मतलब लाइक धीरे नॉर्मल। धीरे क्या होता है, व्हेन यू ड्रॉप योर जॉस, तो रिलैक्सेशन इंड्यूस हो रहा है। वो नीचे यस। जाएगा धीरे 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 धीरे, इट विल गो टिल योर टोज। क्योंकि यस। हम यहाँ पे टाइट रखते हैं ना इसको, हम हमेशा पूरे दिन टाइट ही रहता है। यस। हाँ। इसको छोड़ा ना, हाँ। तो सिग्नल गया ऊपर कि हाँ, नाउ वी हैव टू रिलैक्स। ये हम कहेंगे, बोल दो डेड मैन पोज बोल दो, या शवासन बोल दो, कि ऐसे खुल जाता है ना मुंह, उसमें आप बेहतर रिलैक्स करते बहुत रिलैक्स हो। करते हैं हम। तो यस। आंखें बंद करो, और जब भी लगे कि स्ट्रेस है, कुछ है, थक गए हो, तो अपने बिस्तर पे ओपन करो, पाम से लेट जाओ, लंबी गहरी सांसें लो, ऐसे मैं करो। डेफिनेटली ट्राई करूंगी मैम एंड ये जब मैं सोने से पहले इस चीज को मैं जरूर ट्राई करूंगी बिकॉज ये मुझे बहुत रिलैक्स देगा ओवरऑल डे के काम के बाद। हाँ, हो है ना। सकता है, मतलब हाँ, यस। धीरे धीरे आता है, रिलैक्सेशन बहुत अच्छा आता है। और भी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, यस। पर कुछ तो हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। आजकल तो इतना कुछ है श्वेता, इतना कुछ है, कहीं से भी देखो, कुछ भी करो, लेकिन करो, करो, नहीं, ये जरूरी है, करो तो मैम है इसके ना। साथ। और रेगुलर करो,
4 दिन किया, 10 दिन किया, 15 दिन हाँ, किया, नहीं। नहीं, इसको वही मैं कह रही हूँ ना, ब्रश जैसे ब्रश करते हो, इसे बना लो हैबिट। हैबिट बना लो। हैबिट यस। बना लो। नहीं मैम, आपके साथ बहुत अच्छा लगा, हर चीज को समझने का, जानने का मौका मिला। और आई एम श्योर ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में इतना हेल्प करती कि हमें पता भी नहीं चलता है, ये हमारे लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। बिल्कुल। अभी एग्जैक्ट। मतलब बिना एक्सरसाइज के दिन अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम्म। आप नहीं करते हो, डेली करते हो, और किसी दिन आपने नहीं करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि यार आज कुछ हमने मिस कर दिया है, तो वो ब्रश करते हुए अच्छा नहीं लगता है ना, सेम वही हो जाता है। तो मैम इसके साथ बहुत आपने अच्छी बात बताई, और इसके साथ मैं आपके साथ एक सरप्राइज इम्प्रॉम्प्टू एक्टिविटी करना चाहती हूँ। हमारा सेशन अभी कंप्लीट हो गया, बट अलोंग विद दिस इज समथिंग अ वेरी सरप्राइज इम्प्रॉम्प्टू एक्टिविटी। आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन एंड यू जस्ट गिव मी आंसर इन वन वर्ड, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और वो आप टू द पॉइंट एंड इम्प्रॉम्प्टू आप बताइएगा, तो आई थिंक आई होप यू लाइक इट डेफिनेटली। सो शैल वी स्टार्ट मैम? श्योर। आप द फर्स्ट क्वेश्चन इज, योगा मैट और जिम वेट्स? योगा मैट। Oh, great. I know, ma'am. You know the answer. Face yoga or full body workout? फुल बॉडी वर्कआउट। Morning workout or evening workout? मॉर्निंग। मॉर्निंग। Home workout or studio workout? होम। Green smoothie or protein shake? ग्रीन स्मूदी ऑलवेज। Yoga with music or in silence? विद म्यूजिक। एंड बोथ। Great. Deep breathing and meditation. बोथ। Self care Sunday or fitness Friday? से इट अगेन। सेल्फ Self केयर self care Sunday or fitness Friday? मीन्स मतलब यू मीन कैन। सेल्फ, आप अपना संडे को सेल्फ केयर करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, या फ्राइडे को फिटनेस वाला एक होता है ना टैग, हम फ्राइडे को जाके अपनी नो 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 नो, HIIT सेल्फ वर्कआउट केयर, करेंगे? सेल्फ केयर, सेल्फ केयर। यस। फिटनेस तो डेली है ही। यस। फिटनेस तो डेली है ही। एंड ग्रुप क्लासेस और सोलो वर्कआउट्स? ग्रुप। ओ। ग्रुप ऑलवेज मोटिवेट्स। मैं तो कभी यस। 1 to 1 लेती ही नहीं क्लासेस। यस। क्विक स्ट्रेचेस और लॉन्ग योगा सेशन? Depends. Long is always good, but if you have no time, go for quick. This also helps. So ma'am, this is all about it, and I hope you like it, Yeah, this yeah. our It was so conversation. fun. So fun. So fun. Yes, Thank you. and I'm feeling so blessed and grateful. You are me as a guest. You are here, and a lot of learning from your side. And thank you so much once again, Thank you. ma'am. Thank you, Shweta. Thank you. I am blessed. I am grateful. Thank you. Thank you. All the best. Thank you so much.